Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, quantitative aptitude is one paper which plays very important role in our selection. And this is the paper where we can get very high marks and improve our aggregate score in competition. In recent times, I have come across many candidates, those who are weak in quant, but able to improve in a fantastic fashion. The strategy which I devised or suggested to them, I will put that strategy in this video so that you can also take advantage of that. So to be good in quantitative, one thing is practice. And for practice, you require excellent mock test. And based on my experiment with candidates in recent times, I found a very good mock test which I suggested to my candidates, and success rate is also very high. Many of them were able to get selection and now they are working. The link of this mock test is available in description and comment column. I will advise you to subscribe this mock test today itself. You can take annual plan at $599 or 6 monthly plan at $499. This is your choice. So you can take either of the plan and use it for practice purpose. Second important aspect of preparation is improving our fundamentals. Because most people they suffer in quantitative aptitude paper on account of weak foundation in arithmetic. We have to be very clear what is the foundation of quantitative aptitude, or we can say DI. The quantitative aptitude foundation is on simple maths, or we can say arithmetic, or we say basic operations, and where these operations are covered. These operations are covered in our elementary books, elementary textbooks. Sometimes what we do is we use hit and trial method. Sometimes we use shortcuts. That is not the remedy of improvement in quantitative aptitude paper. The remedy is we must refer basic textbook. Say you are attempting a quantitative aptitude paper and you have found your weakness. Say a person is weak in calculation of percentage. A person is weak in profit and loss. A person is weak in man and work. A person is weak in mixtures. Another person is weak in some other operations. So you have identified your weakness. Now merely by practice you will not improve this. If you are weak, that means your fundamentals in this area are weak. The conceptual clarity is not there. So from where you should take the help? The ready-made solutions will not help you. The textbook that is meant for primary school or secondary school, that will come to your rescue. That's why I always recommend textbooks from class 2nd to class 8th. These can be NCERT books, they can be your local board books, they can be some local author books also. Purpose is to read the respective chapter from the textbook in which you are weak. The moment you read the basic chapter, you will achieve the conceptual clarity. And you should go on reading that book till you understand the concept. That means you can give one reading, you may understand. Say you are unable to understand, give another reading. Or you can have third reading also. The purpose is to
achieve conceptual clarity of those aspects where you are weak. So the combination of good mock test along with textbook will improve your performance in quantitative. So quantitative is a paper which can easily be improved, and this is a scoring paper. So if you put your efforts in right direction, means first you have good mock test, a quality mock test which identify your weakness, and after identification of your weakness you concentrate on the textbook, read the respective chapter and improve in conceptual clarity. In real examination you will get the marks. Some people are only bothered about speed. Never bother about speed when you are preparing for an examination. Your attempt should be to achieve the accuracy. In competition, there cannot be a situation that there will be very high cutoff. The cutoffs are moderate in most of the examinations where vacancies are large. Only exams where vacancies are less, like RBI assistant, or maybe SEBI, or maybe some other exam where only vacancies are 100, 200. Naturally, cutoff will be very high. Out of lakhs of people, only 100 people will be picked. But where vacancies are large, like State Bank of India, like RRBs, like IBPS, PO clerk, in these examinations, normally the cutoffs are not very high. It is moderate. And these are the examinations where you can get success. So for success in these examinations, your focus should be more on accuracy than speed. How you can improve speed, that also I will cover in future videos. But right now I am asking you to concentrate on accuracy. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से काफी लोगों का प्रश्न था कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कैसे इंप्रूव करें, क्या तरीका हो सकता है कि हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं. इसके लिए आपको दो काम करने हैं. पहला, एक आपके पास अच्छा मॉक टेस्ट होना चाहिए. अब पिछले कुछ सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स के साथ, उसमें मैंने पाया कि वो गलत मॉक टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. क्योंकि काफी लोग टेम्प्ट होते हैं कोई चीज फ्री मिल जाए, वो मिल तो जाती है मगर उसमें क्वालिटी नहीं होती, तो वो फिर क्या होता है कि सिर्फ उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. देखो, कोई भी चीज यदि कोई बना रहा है, कोई अच्छा ऑथर बना रहा है या अच्छा टीचर बना रहा है, तो नेचुरल है कि वो उसकी कोई कॉस्ट होगी, और जो उसको बनाएगा, जो उसको आपको डिलीवर करेगा, वो आपसे कॉस्ट उसकी रिकवर करेगा. तो ये जो होता है कि हम फ्री के कई बार चक्कर में पड़ते हैं, उसको थोड़ा सा हमें साइकोलॉजी से निकलना है. क्योंकि और भी हम खर्चे करते हैं. अगर हम पढ़ाई पे भी थोड़ा सा खर्चा करते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब कैंडिडेट्स के साथ मैंने रिसेंट टाइम में इंटरेक्शन की, क्योंकि मेरा काफ़ी एग्रेसिव इंटरेक्शन है कैंडिडेट के साथ 2012 के बाद, वहाँ हमने ये एक अच्छा मॉक टेस्ट आइडेंटिफाई किया जो अच्छी क्वालिटी का भी है और रीजनेबली प्राइस्ड है. 12 महीने का सिर्फ 599 कॉस्ट है, 6 मंथ्स का 499 कॉस्ट है. तो सबसे पहले आप एक अच्छा मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए. लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया. ये जो प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट की, ये धीरे 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 आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा. ये जो आपकी प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट की, ये आपको बताएगा कहां पर आप कमजोर हैं, कहां आप स्ट्रांग हैं. तो पहला काम तो ये है प्रैक्टिस करना, और एक अच्छे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना. उसके लिए मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में. यदि अभी तक आपने ये मॉक टेस्ट नहीं लिए, आज आप ले लीजिए. जिन भी लोगों ने मेरा कहना माना और इस मॉक टेस्ट को यूज किया, वो आज खुश हैं और वो मेरी तारीफ करते हैं, और कईयों में से फायदा भी हो चुका है, ऑलरेडी जॉब भी मिल चुकी है. अब आपने मॉक टेस्ट इस्तेमाल कर लिया, आपको अपनी कमियां पता लग गई. अब आपका काम है ये जो आपके कमजोर एरियाज हैं, क्योंकि फाउंडेशन क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अरिथमेटिक.
तो मोस्टली ये देखने में आया कि जिन लोगों का अरिथमेटिक वीक है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर में स्कोर नहीं कर पाते, और जिनका अरिथमेटिक स्ट्रांग है वो बहुत अच्छे नंबर ले जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है तो ये आपका जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, किसी के बहुत कम आ सकते हैं। तो इसमें जो लीड बन जाती है कैंडिडेट की दूसरे के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन लीड बन जाती है। अब आपने अपनी कमजोरी आइडेंटिफाई कर ली। मान लो कोई व्यक्ति परसेंटेज में वीक है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ निकालना उसको नहीं आता, हानि निकालनी उसको नहीं आती, मिक्सचर्स में कोई वीक है, कोई मैन एंड वर्क के क्वेश्चंस में वीक है, कोई स्पीड के क्वेश्चन में वीक है, किसी और एरिया में वीक है। अब वो क्या करता है, जो वीकनेस को जारी रहने देता है, उसको लगता है चलो ये नहीं निकलता, छोड़ो इसको, कुछ और करते हैं। ये गलत अप्रोच है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको हमें ठीक करना है, और वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक रेफर करनी है स्कूल लेवल की। इसीलिए मैं क्लास 2 से क्लास 8 की टेक्स्ट बुक रिकमेंड करता हूँ। जिन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया है ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट आई है उनके अंदर। तो आपने क्या करना है, वो एनसीईआरटी की मिल जाए बुक, लोकल बोर्ड की मिल जाए, किसी लोकल ऑथर की मिल जाए, जिसके अंदर वो टॉपिक कवर हो। मोस्टली टॉपिक 7th 8th की टेक्स्ट बुक्स में कवर्ड है। तो वो टॉपिक आपने उठाया, उसका चैप्टर पढ़ा, हो सकता है आपको कंसेप्ट पहली बार में समझ आ जाए, नहीं समझ आया दोबारा पढ़िए, फिर समझिए, नहीं समझ आया तीसरी बार पढ़िए, जब तक वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ना हो जाए उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। ये जो हमारे मन में एक स्पीड 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 लगी रहती है, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए। अभी आपका काम है एक्यूरेसी, अधिक से अधिक नॉलेज एक्वायर करना। अगर आप देखें अधिकांश कंपटीशंस में कट ऑफ कोई बहुत हाई नहीं जाता, केवल उन कंपटीशन में कट ऑफ एबनॉर्मल जाता है जहां नंबर ऑफ वैकेंसी ही कम है। जैसे आरबीआई असिस्टेंट है, वैकेंसी कम है, कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। सेबी है, कम वैकेंसीज है, एबनॉर्मल जाएगा। पर यदि हम देखें एसबीआई का एग्जाम, चाहे पीओ चाहे क्लर्क हो, रीजनेबल कट ऑफ जाता है। आईबीपीएस का पीओ या क्लर्क को रीजनेबल कट ऑफ जाता है। तो ये जो 4 से 5 एग्जाम है, ये वो एग्जाम है जहां आपको नौकरी मिल सकती है, और इन पर हमें फोकस करना चाहिए। कुछ कंपटीशन है जहां वैकेंसी ही कम है, उसमें उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगी जो एबनॉर्मल, जिनकी परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। ये स्पीड के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। काफी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, बिना स्पीड के ये निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये कंपटीशन एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों का है, पर एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से। तो तैयारी के समय हमें एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करना है, और जब हमें एक्यूरेसी अचीव हो जाएगी फिर हम देखेंगे हमें स्पीड कैसे बढ़ानी है। ऑलरेडी वीडियोस भी है इस चैनल पे, और फर्दर वीडियोस भी मैं आपके यूज के लिए डाल दूंगा। तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हुई, अच्छा मॉक टेस्ट, उससे प्रैक्टिस करना, उससे अपनी कमियां ढूंढना, और फिर कमियों वाले एरिया पे टेक्स्ट बुक पढ़ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करना। अगर आप ये करते हैं दोनों चीजें, आप देखेंगे एबनॉर्मल इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। बाकी मेरी वीडियोस इसके अंदर है, क्वांटिटेटिव में कैसे इंप्रूव करना है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे रहा हूं, उनको भी आप देख लीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।